जय हिंद स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू सोल्जर अनप्लग्ड। आज के हमारे इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस के। ठीक है, हमने इससे पहले हमारे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स अच्छे से खत्म कर लिए। आप मेक श्योर करो कि उसको जो है साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहो, बिकॉज वो पूरा जो है वोकैबुलरी का गेम है। ठीक है, वोकैबुलरी का गेम जो है वो आपको वोकैबुलरी की नॉलेज से ही आप जीत पाओगे, उसके अलावा नहीं जीत पाओगे। ठीक है, सो मेक श्योर यू कीप प्रैक्टिसिंग वोकैबुलरी एंड कीप नोइंग मोर वर्ड्स ऑन डेली बेसिस। ठीक है, दैट्स द की टू योर सक्सेस विद इंग्लिश। ओके, आज का हमारा इस लेक्चर जो idioms and phrases का है, we'll be discussing about what idioms and phrases really are and how do you approach them in your examination. ठीक है, we'll be discussing about few phrases that you will possibly see in your examination. Okay, and idioms and phrases का सिर्फ यही है कि these are already set phrases, right, और set idioms जो काफ़ी लंबे समय से चलते आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे कुछ है नहीं कि ये इन्वेंट होते हैं। ठीक है, बट दीज फ्रेजेस आर ओनली गुड टू नो। आप इनको जब तक सुनोगे नहीं, जब तक इसके बारे में मीनिंग नहीं समझोगे, इसका और कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, दे आर वो शॉर्ट ट्रिक्स टू पॉसिबली गेट एज दिस पार्ट ऑफ इट, बट आपको इतना ही है कि जितना हो सके इडियम्स एंड फ्रेजेस को बस गो थ्रू करो कि ये इसका क्या मतलब है, अच्छा ये क्यों ऐसा मतलब कैसे होगा। दैट विल बी द ओनली वे यू कैन एज दिस पार्ट। ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. Okay, now what are basically idioms and phrases, right? So idioms and phrases, they first of all form the essential part of any language, right? they हम लोग हिंदी भाषा में भी कभी कभार कुछ phrases यूज करते हैं, इंग्लिश भाषा में भी उसी तरह कुछ phrases हैं जो हम यूज करते हैं. What do they add? They add power, meaning and crispness to our everyday expressions, conversations and writings. ठीक है, कभी हम बात करते हैं तो वो जो पावर है, जो मतलब समझाना चाहते हैं दूसरे बंदे को, वो पावर ये ऐड कर देता है. There is a huge number of idioms and phrases and proverbs in English, and we should not hesitate to use them to enhance the beauty of the language. What I just say, there are a lot of already there, है ना? Huge number of idioms and phrases, right? And proverbs in English that and we should not hesitate to use them to enhance the beauty of the language. ठीक है? Keep this in mind कि there are already so many, and you need to. The only way you can know about them is just by going through them. Clear? Idioms and phrases do not have an ornamental value, but more than that, they are tools which can be used to get the desired impact. Okay? Quite clear? Okay. Again, idioms are usually comprised of very few words, but are encompassed with them is a deep meaning. Okay? The only disadvantage in using them is that our eagerness and enthusiasm to impress others. We normally do not spend any time in understanding the meaning of the idiom. Clear? समझ में आ गया होगा, इतना तो basic knowledge होगा. But before we start, let's give a brief introduction of what idioms and phrases really are. All right, now let's get started. Okay, now I'll be starting continuously now idioms and phrases. Okay, now these are quite few idioms and phrases. इनके साथ साथ इनके मतलब भी बताएं. ठीक है, आप कहीं से कोई बुक ले सकते हो, कोई अपनी नॉर्मल जो आपकी बुक है, कोई आपकी अरिहंत की बुक है, उसको लो, उसमें idioms and phrases का just go through them. You don't even have to memorize it. Just go through them. You'll understand as to why that phrase was used to give that meaning. चलो देखते हैं कि कैसे है. A blessing in disguise, है ना? It's a blessing in disguise. Disguise का क्या मतलब होता है? Something that's hidden, है ना? Something good that isn't recognized at first, है ना? Something good that isn't recognized at first. कि ये कुछ अच्छा है but इसको किसी ने recognize नहीं किया, मतलब छुपा हुआ था, है ना? A blessing in disguise. Clear? A chip on your shoulder. अब chip on the shoulder usually हम लोग क्या समझेंगे, यार यहाँ पे एक chip पड़ा हुआ है क्या, है ना? उठा के खा लेते हैं. नहीं, वो नहीं. Okay? But a chip on a shoulder is to seem angry all the time because you think you have been treated unfairly or feel that you are not as good as other people. ठीक है? That means a chip on your shoulder. ठीक है? A dime a dozen. What? A dime a dozen. मतलब anything that is common and easy to get. Clear? A dime a dozen. ठीक है? Okay. Now let's get to the next page. A doubting Thomas. What is it? A doubting Thomas. Doubting Thomas क्या है? A skeptic person basically who needs physical or personal evidence in order to believe something. ठीक है? Again, just a phrase used by people. A doubting Thomas. बंदा जो हर बार डाउट करता है किसी चीजों पे, है ना? A doubting Thomas. A skeptic, basically person who needs physical or personal evidence in order to believe something. Right? Okay, next.
A drop in the bucket. क्या? A drop in the bucket. Now what could this mean? A very small part of something big or a whole. Quite clear and simple, है ना? एक drop in a bucket कितनी है कि मतलब एक बहुत छोटी सी चीज एक बड़ी सी चीज में, है ना? So a very small part of something big or whole. Okay? A fool and his money are easily parted. A fool and his money are easily parted. जिस बंदे को पैसों की समझ नहीं, उसका पैसा कहाँ टिकेगा, है ना? It's easy for a foolish person to lose his or her money. ठीक है? A fool and his money are easily parted. ठीक है? Just to क्या? To impress others, we're using these statements, right? A house divided against itself cannot stand. This people usually use in team meetings जब team आपस में झगड़ा कर रही है ना? A house divided against itself cannot stand. ठीक है? इसका मतलब क्या है? If the members of a group fight against each other, the group will be disintegrate. The group will disintegrate. Clear? समझ में आया? Okay. Next we have is a leopard can't change his spots. Can a leopard change his spots? नहीं. But हम क्यों use कर रहे हैं कि जो leopard है वो अपने spot तो नहीं change कर सकता. तो what is the meaning that is hidden behind this? A person's character, especially if it's bad, will not change even if they pretend it has. है ना? कोई बंदा जिसको जुए की लत लगी हो, कुछ भी हो, वो अगर बोले भी कि वो change हो गया है, वो हो गया है, but एक a leopard can't change his spots. ठीक है? ये phrase use कर लेते हैं हम वहाँ पे. ठीक है? A penny saved is a penny earned. A penny saved is a penny earned. इसका क्या मतलब है? By not spending money, you are saving money. Little by little. ठीक है? A picture paints 1,000 words. What? A picture paints 1,000 words. मतलब जो visual है, visual presentation is far more descriptive than words. ठीक है? A picture paints 1,000 words. मतलब जो picture, can a picture paint? No. Right? A painter paints. Right? बट यहाँ पे जो फ्रेज है द पिक्चर पेंट्स 1,000 वर्ड्स बिकॉज जो पिक्चर जो है वो हमारे दिमाग में इतने सारे शब्द भर देती है rather than words, right? A visual presentation is far more descriptive than words. Clear? Okay. Let's go ahead to the next. A piece of cake. I think you all would have heard this. A piece of it's a piece of cake for me. मतलब बहुत आसान है मेरे लिए, है ना? A task that can be accomplished very easily, right? It's a piece of cake for me, है ना? हम ऐसे बोलते हैं बिकॉज देखो मैं बोल तो सकता हूँ यार मेरे लिए बड़ा आसान है और दिस इज वेरी इजी फॉर मी बट ओह दिस इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी मतलब बहुत आसान है मेरे लिए ठीक है अ स्लैप ऑन द रिस्ट अ स्लैप ऑन द रिस्ट मतलब अ वेरी माइल्ड पनिशमेंट है ना बट छोटी सी पनिशमेंट द पनिशमेंट गिवन टू द मर्डरर वाज अ स्लैप ऑन हिज रिस्ट और अ स्लैप ऑन द रिस्ट ठीक है मतलब अ वेरी वाइल्ड पनिशमेंट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन है ना अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन जब कोई बंदा को वैसे ही ट्रीट किया जाए जैसे वो तुमको करे क्या बोलेंगे अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन यू आर गेटिंग अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन जब तुम क्या नहीं करे किसी के तो हम क्यों करें यू आर गेटिंग अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन राइट व्हेन यू आर मिसट्रीटेड द सेम वे यू मिसट्रीट अदर्स क्लियर परफेक्ट नाउ नेक्स्ट अ टॉस अप व्हाट अ टॉस अप इसका क्या मतलब है अ सिचुएशन वेयर टू और मोर पॉसिबिलिटीज आर इक्वली लाइकली ठीक है अ टॉस अप मतलब या तो ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है जो प्रोबेबिलिटी है इनकी वो इक्वल है ठीक है आई होप प्रोबेबिलिटी आई थिंक आयुष सर आपको ढंग से पढ़ा रहे होंगे ठीक है द सिचुएशन वेयर टू और मोर पॉसिबिलिटीज आर लाइक इक्वली लाइकली ओके नेक्स्ट वी हैव इज एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स ये भी आपने डेफिनेटली सुना होगा है ना कि जो तू करता है वो जितना तो बोलता है उससे ज़्यादा दिखाता है राइट even if you go to your interview your SSB interview there also there's something called as GTO also you know why GTO is there because लोग बोलने के लिए तो सर आई एम सो स्वीट आई यू नो टेक द टीम टुगेदर आई मेक श्योर एवरीवन इज रेस्पेक्टेड इन द टीम है ना साइकोलॉजी में भी अच्छे से लिख के आ जाएंगे वो जब ग्राउंड पे बात होती है व्हेन असली में बात होती है दे यूजुअली एंड अप शोइंग द ट्रू सेल्व्स right so the action speaks louder than words it's just better to actually do something than just talk about it clear add fuel to the fire ये भी सुना होगा है ना कि यार आग में घी क्यों डाल रहा है तू है ना तो ये जले पे नमक क्यों छिड़क रहा है काइंड ऑफ अ थिंग right add fuel to a fire something done to make a bad situation even worse than it is right something done to make a bad situation even worse than it already is clear okay next we have is against the clock against the clock मतलब time के against है ना basically against time
in a great hurry to get something done before a particular time, right? We need to work against the clock, है ना? मतलब हम टाइम के साथ जो है वो कॉम्पिटिशन करें, अगेंस्ट चल रहे हैं उसके, है ना? इन अ ग्रेट हरी टू गेट समथिंग डन बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम, ओके? ऑल बार्क एंड नो बाइट, है ना? हम हिंदी में भी ये बोलते हैं कि यार भौंकने वाला कुत्ता कभी काटता नहीं है ना? जो कुत्ता भौंकता है ज्यादा वो कभी बार काटता नहीं। Excuse me for that. Okay. When someone is threatening and or is aggressively but not willing to engage in a fight, है ना? When someone is threatening and not, मतलब वो मतलब threaten तो कर रहा है कि यार मैं तेरे को ना मुक्का मार दूंगा, है ना? बट उसके बाद अग्रेसिव भी हो रहा है, बट जब बारी आए लड़ने की तब कहीं उधर उधर जा रहा है, कहीं भाग रहा है, कहीं फोन नहीं उठा रहा है ना? सो ऑल बार्क एंड नो बाइट, सिर्फ बात करना आता है, लड़ना नहीं आता, ठीक है? ऑल ग्रीक टू मी, ऑल ग्रीक टू मी, क्या आपको ग्रीक भाषा समझ में आती है? नहीं, तो उसका भी यही मतलब है, समथिंग दैट इज मीनिंगलेस एंड इनकॉम्प्रिहेंसिव टू समवन, है ना? मतलब ही नहीं समझ में आता, मेरे लिए तो मीनिंगलेस ही है ना? मीनिंगलेस एंड इनकॉम्प्रिहेंसिबल टू समवन, ओके? नेक्स्ट वी हैव इज ऑल इन द सेम बोट। अगेन ये भी सुना होगा, हम सब एक ही थाली के हैं, है ना? एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आई थिंक समथिंग, आई एम नॉट एबल टू गेट द एग्जैक्ट फ्रेज हिंदी में, बट ऑल इन द सेम बोट व्हेन एवरीवन इज फेसिंग द सेम चैलेंज, है ना? When everyone is facing the same challenge, so what do you say? Okay, all are in the same boat. Clear? Perfect. Now with that we come up to the end of 20 words. ठीक है? Sorry, 20 idioms and phrases. Okay? हल्का थोड़ा मुश्किल लगा, थोड़े थोड़े, है ना? बिकॉज थोड़े थोड़े हमने पहली बार सुने हैं, है ना? कुछ कुछ तो दो तीन हमें पहले से आते थे, है ना? वो दो तीन क्यों आते थे? बिकॉज वो अक्सर कभी हमारे आसपास के लोगों ने यूज किया है, ठीक है? इनको अगर आप थोड़ा जान लोगे, आप इनको भी यूज कर सकते हो, है ना? यूज करोगे तो आपका जो उन्होंने बोला था ना स्टार्टिंग में, द इम्पैक्ट और द पावर ऑफ द एक्सप्रेशन इंक्रीजेस बाय यूजिंग दीज। बस इतना इनका यही काम है, बट अगेन इनका मतलब तब जान पाओगे बस एक बार बस ग्लांस कर लो कि अच्छा ये क्यों यूज होता है, देन आई एम प्रीटी श्योर आप एग्जाम में भी एकदम पढ़ोगे एकदम टक करके मार्क करते आ जाओगे, ठीक है? चलो नाउ लेट्स मूव टू वर्ड्स लर्न। वर्ड्स लर्न में हमारा पहला है लेरी। व्हाट डज लेरी मीन? कॉशियस और वेरी ड्यू टू रियलिस्टिक सस्पिशन, ओके? क्या? कॉशियस और वेरी ड्यू टू रियलिस्टिक सस्पिशियस, ओके? सिनोनिम क्या है इसका? केयरफुल। एंटोनिम क्या है? केयरफुल का ऑपोजिट केयरलेस। क्लियर? वेरी सिंपल। ओके, अब आ जाते हैं अगले पे। अगला है हमारा लिम्बर। व्हाट इज द वर्ड? वर्ड इज लिम्बर। जैकेट को आज बड़ा मन कर रहा है, ओके? एबल टू बेंड एंड मूव इजिली एंड स्मूथली। क्या? लिम्बर मतलब एबल टू बेंड एंड मूव इजिली और स्मूथली, है ना? मतलब बेसिकली इसका फ्लेक्सिबल है ना? कुछ चीज़ फ्लेक्सिबल है, लिम्बर और निम्बल, ओके? एंटोनिम्स क्या है इसके? रिजिड एंड स्टिफ, ठीक है? इनके जो वर्ड्स हैं, जो आपको सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स भी दे रहा हूँ, कभी पर ऐसे शब्द भी यहाँ पे हो सकते हैं जिनको आपको मतलब नहीं आता होगा। मतलब इसको मतलब पॉज करो वीडियो, गो टू गूगल बाबा, चेक द मीनिंग, अगेन कम बैक, नॉट अ प्रॉब्लम, हम कहीं नहीं भाग रहे हैं, है ना? नेक्स्ट वी हैव इज लिम्पिड। व्हाट इज द वर्ड? लिम्पिड मीनिंग clearly expressed and easily understood. What? Clearly expressed and easily understood. मतलब lucid and clear, है ना? Antonyms क्या होते हैं इसके? Unclear and unintelligible. Okay? Clear? Perfect. So with that, we end today's session. Okay? Make sure that you are practicing the idioms and phrases as well. Idioms and phrases का उतना कुछ है नहीं, बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि इसको बस गो थ्रू कर लो एक बार, ठीक है? एक बार गो थ्रू कर लोगे, अगर डाइम ऑफ अ डजन, है ना? अ डाइम अ डजन, इसका मतलब क्या है ना? जो जो आपकी चीज़ें हैं बाकी सारी, है ना? आराम से एक बार बस गो थ्रू कर लो, आपको इसका मतलब ऑटोमेटिक समझ में आएगा। एक बार एग्जाम में देख लिया आपका, अच्छा अ डाइम ऑफ अ डजन क्या था, अच्छा हाँ इसका ये मतलब था, टिक मार्क करके आगे बढ़ते चलोगे, ठीक है? ओनली वी कैन एक्चुअली एस idioms एंड phrases इज बाय प्रैक्टिसिंग अ लिटिल बिट, ओके? इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, इसमें आप बस आपको गो थ्रू करने की जरूरत है, ठीक है? Okay, so with that we end today's session. I hope to see you in the next class. Until then, Jai Hind.